नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर मिस्टर देबाशीष मोहंती। देबाशीष मोहंती जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है असेट मैनेजमेंट बिजनेस में, और द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड में कुछ नए इनिशिएटिव्स उन्होंने शुरू किए हैं। यानी कि जो फंड हाउस है वो थोड़ा सा डिफरेंटली इन्वेस्टर्स के फेवर में काम कर रहा है। और कई बार हम सोचते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या डायरेक्ट किया जाए या फिर किसी एडवाइजर की मदद ली जाए। तो इसको लेकर भी देवाशीष सर के व्यूज बहुत क्लियर हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों पर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार पंकज जी। सर क्योंकि मेरी कई बार बात हुई और हम तो खैर एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, मुझे एक बात बताइए कि आपके मन में ये बात हमेशा क्यों आती है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या जो एडवाइज़र होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ये इसके लिए क्योंकि आपने अपनी पहली कंपनी में ये सब एक्सपीरियंस देखा है और आपको ये लगता है कि जब कोई गाइड करता है किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए तो डिसीजंस बेटर लिए जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, खुद करते हैं तो कई बार इन्वेस्टमेंट में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। या किस तरह से आपके मन में आया कि यहाँ पर शुरुआत से ही आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इवॉल्व होता रहता है वर्ल्ड ओवर। टेक्नोलॉजी आते रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन व्हिच द ट्रेड कंटिन्यूज दैट डजंट गेट चेंज्ड। व्हाट इज आवर फंडामेंटल्स ऑफ आवर बिजनेस? दैट वी डील विथ something which is invisible, non-tangible, cannot be seen, felt, touched. तो स्वतः इसका बारे में नीड हमारा कस्टमर के मन में जागृत नहीं होता है, unless he is he belong to this industry or already evolved customers है, तो already there will be mix of direct customers and advised customers. When you talk about advised customers, it could be intermediated customer. Somebody nudged him, somebody triggered the thought of investing in mutual fund, that there is a need. And investment activity is not just choosing a scheme and filling up a form. It just starts from there. Continuing with the process, the behavioral and emotional management, thereafter the requirements, services, declarations, regulatory requirements. It is a continuous handholding process. And it doesn't come to us on a 24 hours time, day to day time. We feel need of so many things, we do that thing. We don't feel the need of SIP normally, naturally. It required to be triggered. And while there will be coexistence of evolved customer who will do directly, there will also be need of this community. And that is evident from the fact what happened in developed societies and what happened in our own society. Even if there will be spot when direct customers will increase, but they will require a hand to hold them, and hence they will come back to seek advice or seek guidance. India still having 96% of its population as non-investors. 3-4% which have become investors, majority of them have been brought to this industry by a third person. Be it a banker, an RIA, or mutual fund distributors, or somebody, some teacher, some guide, some sarathi, whatever name you call it, or a colleague who guided, somebody has guided me, I am guiding you, you also come. But that nature of this business will not go away. Mutual fund will remain a complex subject, an English language subject. This required to be simplified. And this is the job of that intermediary who is simplifying the complex financial jargons, requirements, concepts, and different things that we talk about. Second, it requires an effort to tangibilize the non-tangible things. People buy gold. Why? There is a preference for physical touch, feeling, and
and touching this. People hold cash. Why? See, this behavior has changed. But still, a lot of people still update their passbook going to this thing. Why? This tangible need. But if somebody convinces them, this unit digitally you can do or physically do, this is dematerialized, but still this is unit same as this thing. So this require help from somebody else. So as I told you, 96% are non-investors. Let this ratio reach up to at least comes down to 75%. 25% should be our investing class. Who will bring them? Bringing them will be the people who are MFDs, who are RIAs, who every day meets people, talks to people, encourages them, triggers the thought. They are the first time, I call them पदातिक सेनानी. वो घर घर जाके नॉक करते, मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेते, मीटिंग करते, कॉफ़ी शॉप जाते हैं, बात करा के फिर उनको लाते हैं. कोई रहते हैं, कोई रहते नहीं. रहने के बाद then when they grow bigger in their prosperity, then bigger distributor, RIAs or wealth managers or somebody else takes them, or he evolves. He has the time and capacity to go through all the offer documents and all the fund managers' videos, audios, and can take a call out of so many fund houses. It's welcome, he should go direct. I have been in this industry for 37 years, maybe more than that, and I still depend upon MFDs. I have 3 MFDs. One takes care of me, one takes care of my wife, one takes care of my kids. अच्छा. And I never ask what is to be chosen, where to invest, when to stop, what SIP to start. MFD सही है. थैंक यू. सही है सर. सर एक बात बताइए मुझे कि आपने कहा कि इन्वेस्टर्स को गाइड की ज़रूरत पड़ती ही है, और आपने तो अपना एग्जांपल भी दिया कि आपने एमएफडीज चुने हुए हैं, वो पूरी केयर करते हैं. आप क्योंकि खुद भी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, आपने सीएफपी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया हुआ है सक्सेसफुली. तो मुझे एक चीज़ समझनी थी आपसे, जो ये बिहेवियरल बायसेस होते हैं. जब सोने में देखा कि सोने के प्राइस डबल हो गए, तब वहाँ पर एंट्री कर ली. जब इक्विटी में देखा कि बहुत ज़्यादा रैली हो गई, तब वहाँ पर एंट्री की. तो एंट्री हमेशा तब करते हैं जब चीज़ चल चुकी होती है. हर्ड मेंटेलिटी है ना, हर्ड मेंटेलिटी, रिसेंसी बायस जो रिसेंट में हुआ उसको देख के लगता है आगे भी ऐसा ही होगा, उसमें करते हैं. और अब जैसे इक्विटी ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या जीरो दिए हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कोई इक्विटी में रिटर्न बन नहीं रहे हैं. तो क्या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एक RIA इन्वेस्टर के जो बिहेवियरल बायसेस हैं उनको दूर करने में और एक रिसर्च बेस्ड तरीके से जो डेटा कहता है, जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से इन्वेस्ट कराने में मदद कर सकते हैं? जरूर. इनफैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा बोलते हैं, हर जगह में हमको देखने मिलता है. ये डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा सिर्फ not limited to the choice of the scheme. What happens thereafter? The story starts from there. See, investors can lead to their own biases, and हमारा काम ये नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये नहीं कि हाँ में हाँ मिला के, ना में ना मिला के उनका बायस को और रीइंफोर्स करे. उसको डाइल्यूट करने का ज़रूरत है. कभी कभी ये डिफ़िकल्ट जब होता है, बिकॉज गोइंग अगेंस्ट द करंट, sometimes people want to move in favor of the current for some time, then to make a U-turn. But distributor वो सही है जो बेहिचक, without any consideration or any hesitation, can tell on the face of the investor, sorry sir, this is absolutely wrong, you don't have to do this, you have to do this, and you don't have to follow the crowd, you don't have to follow the herd, and I have seen this, what happens thereafter. Simply follow me, and because this is what is called this bias, and we don't do this. And such distributors grow in their business because they can tell truth in a manner that is palatable and convincing, and that's what it works. It's just there are people who दिन को रात बोलो तो रात बोले, इसे बोला नहीं चाहिए. Okay. इसे बोला नहीं चाहिए. आपका बायस को फर्दर टंगदर नहीं करना चाहिए. अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी है. एक टाइम पे तो ऐसा था कि फॉर्म भरना पड़ता था म्यूचुअल फंड का, आपने तो सब कुछ देखा हुआ है, और काफ़ी हद तक मैंने भी, आपसे थोड़ा कम, पर ये देखा है कि
फिजिकल फॉर्म भरते थे तो फॉर्म भरने के लिए भी ज़रूरत पड़ती थी, फॉर्म को जमा करने वो एएमसी के ऑफिस में या रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होता था, वो सारा काम होता था। अब क्योंकि सब कुछ आपके मोबाइल ऐप से हो जाता है, वेबसाइट पर हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है। फिर काफ़ी हद तक जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, जो कॉल सपोर्ट है वो भी होता है एएमसी का, तो आपके जो भी क्वेरीज़ हैं वो भी एड्रेस कर देते हैं। दूसरी बात जो है, जो रिसर्च की बात है, तो इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अगर मुझे परफॉर्मेंस देखनी है, वो तो वेबसाइट पर अवेलेबल है सारी। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि पहले ज़रूरत थी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है, मैं घर बैठे में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास में ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऐसे में एक तो आपने कहा कि आपके बायसेस को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक जो एडवाइज़र हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको सही समय पर, सही जगह पर इन्वेस्ट कराने में मदद कर सकते हैं। लेकिन और कौन-सी ऐसी चीज़ हो सकती है, जो टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं? क्या करने से इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर का ऊपर डिपेंड रहेगा? हुँ, उसका फर्स्ट आंसर इज बिल्डिंग ट्रस्ट ट्रस्ट। एंड रिलायबिलिटी। हुँ, एंड हम बोलते हैं ना, वो तपस्या की थी। वो तपस्या इन दिस वर्ल्ड इज proving yourself or demonstrating the trust every day. You told about give him some report. It is difficult, it's night 10 o'clock you are coming back home, but 5 minutes you more work and send him that report. You ओके, believed that what you committed you send me. You have quoted some figure but wrongly quoted. You realize this next day morning you told investor something which is wrong. You called him, told sorry, what I told is to be corrected. ओके, I checked, you are correct, I am wrong. ओह! Trust is created. अच्छा, Like that, it's not one time job. हुँ, Continually you build trust, you will not go anywhere. He will not only give his investment, he will depend on you on many matters, full life matters. हुँ, Trusted advisor, because he can take better decision than me on my future prosperity and my investment matter. Once that is realized, then no machine, no Google, no robo advisor can compete with you. सर थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है इस पे पूरी एक लंबी चर्चा हो सकती है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे अपने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट अर्न करें और कैसे वो लॉयल इन्वेस्टर्स बनाएं और बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि एक कभी समय निकालें जरूर और हम जरूर विस्तार से जरूर इस पर ही बात करेंगे जरूर कि कैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा तो उससे ना सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि इन्वेस्टर की वेल्थ भी ग्रो होगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे। तो कैसे एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है इन्वेस्टर्स से, सिर्फ वन टाइम नहीं कि आपने उसको बोला, कुछ बातें करके अट्रैक्ट किया और इन्वेस्टमेंट करवा लिया, बट वो कल निकल भी जाएगा। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए कैसे? मैं एक छोटा कहानी बोलता हूँ। बोलिए। हम अभी कोई कारण से एक छोटा शहर गए थे, कोई किसी को कंडोलेंस का साथ रहने जी। के लिए। तो उधर हमको एक इन्वेस्टर्स मिले जो जब पहले जानते थे। तो ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस, ए न्यू हाउस। मी एंड माय वाइफ विजिटेड and I saw in the front of the house, a new house, one name and the Bhavan is written. It says Pankaj Bhavan is written. I'm not telling the name. And I was curious because the person's name was X, I know, and is Pankaj Bhavan. So I asked, is पिताजी का नाम था क्या पंकज? तुमने नहीं, बोले he was my advisor. So square full credit goes to my advisor. Such people are there. तो बड़ी सरप्राइजिंग है कि कई बार ये ट्रस्ट लोगों को है। ऐसा लगता है कि सच में इतना कुछ मेरे लिए किया है कि अगर मैं ये नहीं होता तो मैं शायद इतना नहीं कर पाता। ये स्टोरीज या एक्सपीरियंस रेयर हो सकते हैं, बट हैं। जो आपने आज बताया, ये जो मैंने सुना था उस एमएफडी से कि ऐसा हुआ, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। पर हम इस पर कभी विस्तार से और चर्चा करेंगे। आपने समय निकाला, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज देवाशीष सर से हमने चर्चा की
और ये चर्चा आज छोटी थी, बट हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि क्यों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात की जा रही है, बट ये सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस की बात नहीं है, ये साथ में इस बात की भी इंपॉर्टेंस है कि एक गाइड होने से आपकी लाइफ में कैसे आपकी वेल्थ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।